साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 1 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज़ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विद द एनालिसिस। पहले पेज में दुखद खबर है, वायनाड को लेके हुई लैंडस्लाइड में बहुत लोग घायल हुए हैं। Close to 48 hours into the devastating landslide that tore through the hills of Wayanad district early Tuesday morning, Mundakai, ground zero of the tragedy's ghost village, many of its inhabitants are dead, others remain missing, and those survived were taken out after an Eradis rescue mission. Kerala CM Pinari Vijayan said 1592 people have been rescued since the landslides hit. So rescue operations are on its way, and we hope that the district administration ensures everyone is safe. Moving on to the articles, यहाँ पे हमास शरीफ को बहुत ही कामयाब ऑपरेशन से कहा जा रहा है कि मोसाद ने असैसिनेट कर दिया है। हम अपने आर्टिकल्स पे रहेंगे, बाकी एक बार का अध्ययन आप पूरा करिएगा। हम सिर्फ की आर्टिकल्स पे ही रहने वाले हैं। वेनाड ट्रेजेडी को लेके है, द माउंटिंग टोल इन द वेनाड इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द डेंजर्स ऑफ गिविंग शॉर्ट shift to Kerala's ecological frailties. Warnings were issued more than a decade ago by two expert committees that mapped the eco-sensitivity of the Western Ghats in great detail. Uh, Actually, students, talking about the Western Ghats, many committees and ecological experts have uh, at time by time advocated about the eco-sensitivity of the Western Ghats and have contacted with the authorities as well to ensure that we don't disturb the ecosystem of the Western Ghats because they are totally fragile and prone to disasters. But the system may have ignored these warnings, which led to the deaths of many people. The Gadgil Committee's recommendations were met with resistance by all states and parties across the political spectrum in the biodiverse region, especially in Kerala and Karnataka. 2 years later, a high level working group headed by scientist K. Kasturi Ranjan sought to strike a new balance between environment and development. So, Gargil Committee and Kasturi Rangan Committee both indicated that we need to be more careful with respect to protecting the ecosystem of Western Ghats and not disturbing it. The high level working group committee, whose suggestions to remain on paper had included parts of Wayanad, where landslide struck on Tuesday. About half of Kerala comprises hills and mountain regions with slope greater than 20 degrees. Wayanad had lost 60% of the forest between 1950 to 2018. The erosion of the green cover has made Kerala susceptible to landslides. Okay, so here the issue coming out is that green cover has been eroded. That is, the deforestation has led to weakening of soil and ultimately resulting into the landslide. Okay, eroding of green cover. Wayanad along with Kasargod, Calicut, Malappuram district has been receiving above average rainfall for past 2 weeks, largely because the warming of the Arabian Sea has led to the formation of deep cloud systems over parts of Western Ghats. However, it's clear that excessive rainfall disturbed the already fragile geology region. The IMD had indicated the possibility of landslides 2 days before the tragedy. इसमें देखो ये कहा जा रहा है कि समय समय पे वार्निंग्स दी गई थी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो वही चीज़ें हैं, वी हैव टू टेक डिज़ास्टर मिटिगेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीरियसली ईयर। ओके, ये वाला आर्टिकल भी वायनाड को लेकर ही है। Wayanad, the enormity 2024 landslide in Wayanad can be conveyed with this fact.
The two villages have been washed away entirely, Maddikai and Klurunmala. These were villages home to roughly 1,000 people each that buzzed with activity till Monday night. Kerala's annual landslide problem has again put the spotlight on the reports of Madhav Gadgil Committee 2011 and the K. Kasturirangan High Level Working Group 13, as well as the resistance to the recommendations. बेसिकली हुआ यह था, जब कमिटीज़ ने रिकमेंडेशंस दी थी तो स्टेट्स ने लगभग एक बियॉन्ड पार्टी लाइंस मना ही कर दिया था, भैया ऐसा नहीं हो पाएगा. वी कैन नॉट स्टॉप दी डेवलपमेंटल वर्क्स एंड प्रोजेक्ट्स इन दी वेस्टर्न घाट्स. The areas of Wayanad that had been devastated by the landslide were among those that were recommended to be demarcated as ecological sensitive areas. और जिस एरिया में आज लैंडस्लाइड आई हुई है, गडगिल कमेटी ने उसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव कहा था. इको सेंसिटिव रीजन्स हैं, इन्हें आपको नहीं छेड़ना है. पर वहाँ पूरे शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं. According to Gadgil Committee report, in ecological sensitive area 1, ESA 1, नो फॉरेस्ट लैंड कुड बी चेंज टू नॉन फॉरेस्ट लैंड. जो कैटेगराइजेशन करा गया था कि अगर आप ESA 1 कैटेगरी में आ रहे हैं तो फॉरेस्ट लैंड को ESA 1 कैटेगरी में आ रहे हैं तो नो फॉरेस्ट लैंड कुड बी चेंज टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड कुड नॉट बी चेंज टू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. मतलब आप वहाँ पे रहिए मगर वहाँ की चीज़ों को चेंज मत करिए. फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट को फॉरेस्ट रहने दीजिए. इन द रिपोर्ट, Sultan Batheri, Vaitri and Mantavadi in Kerala's Wayanad district were especially vulnerable and therefore needed to be placed in the highest category of ecological sensitivity. The recommendation to prohibit the change of land use subsequently led to a group of farmers protesting in the hilly regions. Protests spearheaded by all sections of the political class erupted in 2013 in Kerala and other southern states against the perceived imposition of the report on the public. Without stakeholders' consultation, even though there were claims that the protests were organized at the behest of mining mafia, the threat of being evicted rang too close to home for the settler farmers in high ranges. बेसिकली लोगों ने सब मना कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो गडगिल कमेटी और कस्तूरीरंगन कमेटी सिर्फ फाइलों में ही रह गई. आरोप ये लगाए गए हैं कि ये माइनिंग माफिया जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स थे इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को रोकने के लिए. तो यहाँ पे आपके सामने जो की इश्यूज़ निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहली बात इको सेंसिटिविटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ का डिमार्केशन होना ज़रूरी है, साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है. 2 कमेटीज़ बनी थी जिन्होंने इसको लेकर अपनी सलाह दी थी, गडगिल कमेटी और कस्तूरीरंगन कमेटी. गडगिल कमेटी 2010 में बनी थी, कस्तूरीरंगन कमेटी 2013 में बनी थी और दोनों की सिफारिशों को मना कर दिया गया था. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मूवमेंट थे कहा यह जाता है, कोटिंग दैट, और अल्टीमेटली वही हुआ जो होना था. तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि वेस्टर्न घाट्स के बारे में अध्ययन करिएगा कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं आपके वहाँ पे क्या इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं और इसके अलावा और क्या बेटर सॉल्यूशंस हमें वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन से मिलके. अगला आर्टिकल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. ये ग्लोबल आर्टिकल है जो कि मेरे हिसाब से आपके काम में नहीं आएगा, तो उसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि यूपीएससी बेसिकली अभी इंडिया में ही टिका हुआ है. इंटरव्यू में हो सकता है बहुत से बहुत पूछ ले, मगर रेयर केस में पूछ सकता है आपसे. अनटिल एंड अनलेस समथिंग इज एसोसिएटेड विद इंडिया यू डोंट हैव टू मग अप एवरीथिंग. ऑस्ट्रेलियाज वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल टू कॉम्बैट पीनट एलर्जी. अभी क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो पढ़ लेते हैं क्या है. Babies with peanut allergies will be exposed to peanuts from an early age in Australia, the world's first model aiming to transform allergy care. Under this, allergic children under 12 months will follow a carefully planned daily dosing schedule of peanut powder over 2 years. ठीक है, पीनट एलर्जी को लेके यहाँ पे सॉल्यूशन लाया गया है. इसके बारे में हम आर्टिकल डाल देंगे, आप डिटेल में और इसकी जान लीजिएगा. वेबसाइट पे भी आर्टिकल्स हम समय पर डालते रहते हैं. इसके अलावा ये और आर्टिकल है एंटी कन्वर्जन लॉ, उत्तर प्रदेश असेंबली में पास करा गया है. देखते हैं क्या है. Why was the amendment brought in? The amendment was introduced by the BJP government in UP with stated aim of protecting certain group of people including minors, people with disabilities, scheduled castes and scheduled tribes. It says that penal provisions in the 2021 Act were not sufficient to prevent and control religious conversion and mass conversion. तो वैसे जो religious conversion होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया जा रहा है. This reflects the view expressed by Justice Rohit Ranjan Agarwal of the Allahabad High Court on July 1 in his order
rejecting a bail application filed by an accused under the 21 Act. He stated that unlawful activity of conversion of people of SC/ST caste and economically poor person into Christianity is being done at rampant pace. अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो जुलाई, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद महीने भर पहले की ये बात है, जब ये बात निकल के आई थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की कमेंट्री थी कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, जिस हिसाब से रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पे फोर्सफुल कन्वर्जन करे जा रहे हैं, गरीबी की आड़ में लोग को बहला फुसला के करे जा रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जो मेजॉरिटी है वही माइनॉरिटी हो जाएगी। ये खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने कहा था, रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने कहा था। The amendment is also set to resolve certain difficulties that have arisen in the past pertaining to Section 4 of the 2021 Act. The Allahabad High Court on at least 2 occasions 2023 has held that the phrase any aggrieved person does not mean that anyone can file an FIR for unlawful conversion. अब ये सब लीगल एस्पेक्ट समझ जाइए आप। क्या चेंजेस है स्ट्रिक्टर बेल कंडीशंस इन सेक्शन 3/2021 एक्ट पनिशेस रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएजन, एल्योरमेंट और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स। मतलब ज़बरदस्ती कराना। कोएजन क्या होता है, किसी को ना आप इमोशनली फोर्स कर दें किसी को कि तुमने ये नहीं करा, देखो फिर ये हो जाएगा, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आपने फोर्सफुली उस पर करा, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हैं आप, कि उसे वो काम करना पड़ जाए। एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट क्या बढ़ाई गई है एक्ट में? अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर सेक्शन 5, द अमेंडमेंट ऑल्सो एड्स 2 न्यू कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। इसमें नए ऑफेंस जोड़े गए हैं। पहला, इफ द अक्यूज हैज़ रिसीव्ड मनी फ्रॉम फॉरेन और इलीगल इंस्टीट्यूशंस इन कनेक्शन विद द अनलॉफुल कन्वर्जन देन ही मे बी पनिश्ड विद 14 ईयर्स। अगर कोई ये काम कर रहा है और उसे पैसे कहीं और से मिल रहे हैं, विदेशी संगठनों से मिल रहे हैं या गलत तरीके से मिल रहे हैं, तो उसे 7 से लेके 14 साल की सज़ा है। तो ये इसमें प्रावधान बढ़ा दिया है, 7 से लेके 14 साल की सज़ा है अगर ये प्रूव हो जाता है कि भैया आप ये पैसे लेके काम कर रहे हो, और जुर्माना भी आपका 10 लाख का आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है ना, पनिशमेंट बढ़ा दी है अगर ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज़ टू डू दिस। सेकंड, द अक्यूज कॉजेज एनी पर्सन टू फियर ऑफ हिज लाइफ और प्रॉपर्टी, असॉल्ट्स और यूजेस फोर्स। आपको जबरन करवा रहा है तो 20 साल की सज़ा है। ठीक है ना, आप उसे डरा के अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ये कन्वर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं तो 20 साल की सज़ा है उसमें। तो ये था इसमें आपका अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। काठमांडू प्लेन क्रैश को लेके ये आपके किसी काम का नहीं है, आपको कोई पायलट थोड़ी बनना है। देखिए, यू हैव टू सेलेक्ट विच आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट एंड विच आर नॉट। ऑल दो आई स्टिल से दैट रीड द होल न्यूज़पेपर। वी आर डिस्कसिंग ओनली द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। हम सिर्फ जो कुछ खास आर्टिकल्स हैं उस पर बात करते हैं, क्विक एनालिसिस करते हैं। ठीक है, घंटों वीडियो को फ़ायदा नहीं है। एक आपको ओवरव्यू दे दिया कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स आप डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।